to bring justice to to victims of these riots. At least 5 of them belonging to the Hindu community were killed, and they want the police to investigate thoroughly into those areas. Now, Union Minister Rao Indrajit has met with the Prime Minister. This is a big update we get on the no violence. The Prime Minister has taken cognizance of this, we believe. Rao Indrajit has met with also the Home Minister Amit Shah yesterday regarding the no incident. In this meeting, Rao Indrajit invited the Prime Minister to lay the foundation stone of Reverie aims as well. Well, you have the Union Minister Rao Indrajit, who's met with the Prime Minister and informed him about No, while he's also met with the Home Minister Amit Shah regarding the No issue. So clearly the matter has gone to the top, the Prime Minister himself as well as the Union Home Minister has been filled in about what's happening in Haryana. They would have ideally taken cognizance already by now, but you have a formal meeting now that's been conducted by Rao Indrajit, the Union Minister, with the Prime Minister as well as the Home Minister on the Haryana violence. Amit Bhardwaj for more details. Amit, tell us more on the Union Minister Indrajit Rao meeting with the Prime Minister and Home Minister to appraise him about what's happened. Give us more on the real steps taken by the centre now to ensure that this situation comes under control. It's dangerously close to the national capital. Even otherwise, wherever this happens, this must be stopped at the earliest. It could flare up very quickly. Right, Nabila, Rao Indrajit Singh, the Union Minister and also BJP leader who has a prominence in the Rao land of Haryana, had expressed his concern yesterday because of the Nuh Mewat communal violence, and he had also gone on to say on record that Nuh is a pocket which was not disturbed even in 1947 and at several other points in the history when different parts of the country had seen communal violence, communal riots and communally volatile situation. But this kind of situation is unprecedented. Rao Indrajit Singh had also questioned as to how these people who were part of the procession had weapons in their hands and how the other side also had weapons. So what was the, all these concerns were also raising certain question mark on the preparation of the law and administration of the Khattar government as well. Today you have a senior leader from the BJP from Haryana and who is also MOS in the central government apprising the centre about the situation in Haryana. And along with that, Rao Indrajit Singh had also spoken about how the certain arrangements have been done as far as the state police is concerned, the paramilitary forces are concerned. All these details were shared by Rao Indrajit Singh as well. But Nabila, it is a surge of relief if such meetings are happening, because the developments in Haryana and borders of the national capital are very concerning. Right now I am at the toll plaza between Faridabad and the national capital, and you have the Bajrang Dal Karyakartas blocking the road. Right there you can see these are Bajrang Dal and VHP Karyakartas who have blocked the road. You have Alok Kumar, the VHP president, out here. Alok sir, right there, protesters from the VHP, from Bajrang Dal, still trying to block the toll plaza, Faridabad, Badarpur toll plaza, and you have Delhi police officials who are deployed in big numbers. Drones are being used to monitor the situation, and traffic on this route was blocked for more than an hour. Now there's a conversation between the senior Delhi police officials and the VHP Bajrang Dal Karyakartas. Possibly the message has been given to Alok Kumar as well about the entire situation, and for a short while the traffic was open, traffic movement on this road was open, but right now you have again VHP Karyakartas, blocking the road. And in scenarios of this sort, it is really important that leaders from Haryana, need to make the call, appeal for peace. And Rao Indrajit Singh, as you mentioned, is also having a meeting in this particular regard with the central government. So these are welcome changes which the state of Haryana right now needs, and more so in the areas such as Nuh, Mewat, Gurugram and other spots where the violence, communal tension is spreading. But out here at Badarpur,
Faridabad toll plaza, you can see the Bhagwa flags being raised, the VHP Bajrang Dal Karyakartas raising slogans, small kids even who have assembled here. Right there you can see these are possibly school-going kids who have assembled here. They are also part of the protest, the agitation which is going on at the Badarpur toll plaza. I can see a couple of them are also, were in school uniform. Possibly they have been removed from the spot by now. आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो आप? क्या नाम है आपका? साहिल। क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हो? यस। तो आप क्यों प्रोटेस्ट में आए हैं इसमें? 12th। अरे मेरे गली के ना भैया हैं, सब लोग हैं। तो आप इसलिए आ गए हैं प्रोटेस्ट? यस। Right there you can see the kids in school uniform have also joined the protest. Yes. I just want to give clarification on his term. He is a नाम क्या है भाई? क्या ये clarification क्या है? His name is Sahil Kumar Singh and he has right to protest here and he is doing He's a school going kid. He shouldn't be here. No, he should be aware of his religion, na? He should be aware of his legal terms. It is fine for No, he should be aware of his legal terms. You think it is fine for school kids to be at a spot where communally tense slogans are being raised? Under Article 19, Section 1, Part What A. is your name? My name is Mohit Vasisht. Everyone Mohit, has you right to think freedom of you speech. think where communally charged slogans are being raised, raised, students should be here. We are not provoking them. He has come on his own. We are not. But I'm asking him, he shouldn't be has here. Right to He shouldn't be express here. his freedom. Communally He charged has right to slogans. express his You thought can shout as much you want. You can shout as much you want. But I will never appreciate the fact where school kids are here in Bhagwa. आपको लगता है बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए? बिना पुलिस के आपको नहीं. So right there, no. ठीक है. So out there, Nabila, you can see how things are unfolding on the borders of the national capital. Kids who are in school uniform, they have also assembled here, and people are defending it as well. Back to you. Amit is really bringing us the voices there. Emotions are heightened. People are furious that a thorough investigation is not being conducted as per their perspective on their how they view the violence. They believe that it was the Muslim side that attacked, and they want investigation on that front. Now, let me take you through some information that India Today receives on the FIR that's been registered with this regard. An FIR that's been filed on the Nuh violence mentions quite some horror that has unfolded in Nuh district. Nalhar Shiv temple witnessed quite a riot frenzy. As per the FIR, rioters chanted some slogans and mobs fired at the cops and pelted stones. A mob armed with illegal weapons and a few Shiv devotees were fired at by the mob. Rioters, we believe, fired on the Shiv temple as well while the violence broke out. So these are mentions in the FIR to suggest that the Muslim side attacked some of the yatris, those who were on their way while passing through Nuh. They were attacked, and rifles, guns were used to attack. And this is a question: where did both sides manage to access arms? Shreya Chatterjee joins us live from Nuh, Haryana. Shreya, give us more on the real situation on ground, and more importantly on this FIR that suggests that there were some religious chants that were made. Is it true that pro-Pakistan slogans were raised? Nabila, this is as per the FIR. This is the first information report that has been filed on basis of a complainant who is suggesting that allegedly pro-Pakistan slogans were raised near the Nalhar Shiv Mandir, where at least 2,000 people had taken shelter when the violence broke out. Remember, people had to be rescued from the Nalhar Shiv Mandir. Allegedly, pro-Pakistan slogans were raised is what the complainant has to say, and the same has been mentioned in an FIR. We also do understand that there was heavy stone pelting and firing in the vicinity of the mandir. Now, these are facts that will be ascertained, and only then the action will be taken. But this is a first information report that has been accessed by India Today, which suggests, as per the complainant, that allegedly pro-Pakistan slogans were also raised in Nuh when the Shiv Mandir in Nalhar had come under attack.
All right, Shreya, this FIR suggests that that people had arms, and that's what's very clear here, that they had arms with them. They had guns such as AK-47. This is what has been alleged. Now, the police has to give us more clarity on whether the complaints filed are legit. And of course, we know that the two home guards were shot dead. Who shot them? What kind of rifles and weapons were used? That's yet to be established. But from what we know here, it's quite clear that there were weapons extensively being used. Apart from stones, there was guns that was very much part of the riots, and both sides were armed. So really, who is to blame? How did this pass every security check is the question here. Now, Union Minister Rao Indrajit has met with the Prime Minister and informed him about Nuh. Rao has met with Home Minister Amit Shah as well regarding the matter, and also invited the Prime Minister to lay a foundation stone of bravery aims. As we know, Haryana remains gripped in tensions for the third day as Nuh violence has really spread to many other parts of the state. In fact, it's come dangerously close to Delhi as well, the national capital. We see VHP members who have assembled, and those are the live visuals that we bring to you. Protests by the VHP and the Bajrang Dal along the border areas of Faridabad and Delhi. The communal clashes that broke out during the VHP and Bajrang Dal procession in Nuh district about 2 days ago led to a riot-like situation which erupted in the area of Nuh, and that quickly flared up to areas like Faridabad, Pawal and Gurugram. In fact, the police say that there's a huge security deployment that has been put in place at the moment, and it appears that some of the union ministers has also appraised the matter to the Prime Minister Narendra Modi himself. Let me cut across to Paulami Saha joining us for more on that. Paulami, tell us more on the cognizance that the central government has taken. We believe the union minister Rao Indrajit has also met with the Home Minister and Prime Minister to fill them in. That's right, Nabila. Rao Indrajit Singh is, of course, a minister in the government, and what we're learning is that today, of course, he was meeting the Prime Minister to officially invite him for the inauguration of an AIMS in his area, and that's when he apprised the Prime Minister about the situation on the ground as far as Nuh violence is concerned. He also had, in fact, informed the Home Minister, we learn, yesterday in terms of the situation on the ground in Haryana. He represents, of course, the constituency of Gurugram in the Lok Sabha and is also a minister in the union government. He is MOS for corporate affairs, and he, in fact, met with the Home Minister yesterday and apprised him of the situation. And today, when he met with the Prime Minister to informally invite him for a program in his constituency, he apprised the Prime Minister about the ground situation as well. इस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं सर, आपने कल अमित शाह से मुलाकात की आपने? नहीं, इंक्वायरी तो होगी। हरियाणा लॉ कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। All right, that's Rao Indrajit, who's met with the Prime Minister and the Union Home Minister. He says that the investigation is underway. Of course, at this point, central forces have been deployed in areas of Haryana. The Section 144 has been put in place. Internet services were temporarily snapped. Now we see that the protest by the VHP and Bajrang Dal has poured into the streets of the national capital as well. I'm going to take you through images on the other side of a short break. Do stay tuned to India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single
barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village. That's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield. And I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. North of China is witnessing the wrath of the rain gods. Fierce rain and flooding that have pummeled Beijing since the weekend have killed at least 11 people and several are still missing. Major flooding has forced the evacuation of tens of thousands of people. The torrential rains have caused havoc in the city, with rivers overflowing and submerging various areas. The Yongting River in Beijing has been a significant source of flooding. As more videos emerge, a clearer picture of the extent of the damage is revealed. The flooding has hit several districts, disrupting train services and traffic. Military helicopters have been deployed to deliver emergency food supplies and ponchos to people stranded. As you can see behind me, the traffic boards and trees were blown down and many trees have been inundated. Authorities have issued red alert, which is the highest of its kind for floodings and heavy rainfalls, and warning that the Dashi River in the region, which is just the river behind me, could continue to flood, and telling people to stay away from the rivers. With heavy rains likely to persist through the week, flooding could worsen in northern regions around Beijing, Tianjin City and Hebei province. Bureau Report, India Today. You have come out very strongly against what has happened in the railway compartment, the cold-blooded murder of 4 people, and then what's happened in Nuh Hindu-Muslim violence. Let's get it clear. You have called the railway compartment incident a terror attack. Have you jumped the gun? Because the FIR is very clear. It says there is no communal angle, at least no communal angle is specifically mentioned in the FIR. Should one be more cautious in the times in which we live before suggesting it is a communal crime? The reason I have called it a terror attack is because this was a man who was in uniform, and he had first assassinated or murdered his superior AS officer who belonged to the tribal Meena community. Then he went into 3 different railway compartments and identified Muslims who were having beard or wearing a cap, and then shot them dead. In fact, there is a video still available wherein this man who he shot, who's cringing in pain,
who's turning from right side to left side. Subsequently, he died. Unfortunately, he's from Hyderabad, a place called Bazar Ghat. So, this man went around 3 compartments of the railways, identified Muslims with their attire or with their beard and shot them dead. And in a video, he says that is desh mein rehna hai to Yogi, Modi or Thakre. Now, unfortunately, the government of India wanted the Twitter to remove my tweet, and unfortunately, the Twitter had succumbed to the government pressure tactics, and that tweet of mine has been removed from, it cannot be seen in India. No, that So is because attack. again, these are And very I sensitive. believe No, that Mr. Owaisi, that's because these are very sensitive issues. You know, this is clearly a killing that needs investigation. No one doubts about it. It could well be a hate crime. You could be right that it could be a hate crime. The only point is, in the times in which we live, one has to be a little cautious. That's all I'm saying. Well, Rajdeep, whatever times we live in, we have to say the truth clearly and loudly without mincing words. I will reiterate again that it was a terror attack done by a person who was radicalized and who had become extremist because of the conducive atmosphere of radicalization and extremism that has been created by the ruling party in last 9 years. And that is why we see that this man has no fear. He's standing at a dead body with his licensed weapon. All right, let me cut to some big news coming in as Union Minister Krishan Gujjar cries conspiracy, says that riots were plotted by masterminds. Gujjar says it's common to find illegal weapons, must probe where these weapons came from. This is a Union Minister Krishan Gujjar who says that this is a conspiracy that possibly is hatched by some masterminds, not too sure who's really hinting at, but he's spoken to India Today. Let's cut across Kishan Pal Gujjar, who speaks of arms, illegal arms being found rampantly and that it must be investigated. Also calls the entire attack and the communal riots as a conspiracy hatched. आपकी जो सरकार है हरियाणा के अंदर उसमें उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा कि आयोजक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आयोजक हर बार परमिशन लेते हैं तभी उस रूट पर पुलिस लगाई जाती है। लेकिन पुलिस तो नज़ारत थी सर, 1,500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। वो जो मेडिकल चौक है जहाँ पर सबसे पहले पत्थरबाजी चली, वहाँ 2 PCR वैन थी, 20 कांस्टेबल थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शोभा यात्रा हर साल इस सावन के महीने में निकलती है। किसी को दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बार इस तरह की कोई प्लानिंग है शोभा यात्रा पर हमला करने की। इसलिए जितनी फोर्स चाहिए थी वो फोर्स थी, लेकिन ये दुर्घटना अचानक करते हैं लोग, जिसके कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती और किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब हर साल शोभा यात्रा निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है। इस बार उस पर हमला होगा ये किसी के ध्यान में भी नहीं था। All right, he is an MP from Faridabad. He says the procession was peaceful and yet violence erupted. Well, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur, currently on the edge, we hear that series of shops have been burnt down, particularly those selling biryani have been targeted. India Today has now accessed an FIR where there's a lot of mention about a strong mob of nearly 700 people chanting religious slogans and carried illegal weapons, attacked the police, and stones were pelted at the procession. One policeman was shot in the abdomen, many others were injured, and we hear in the
FIR, it's mentioned that at least 40 people were held hostage in the Ram temple as well. Security has now been beefed up. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. At least 6 people were killed in total in Nuh's violence. Shops were set ablaze by a mob last night. This is in the latest that a series of shops were attacked. The mob ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 shops were set ablaze. RAF has conducted flag marches in Badshahpur as violence has gripped the region. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIRs रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। All right, now the situation has really gone out of control and it appears that the reason for all this was Monu Manesar. This is what a lot of people say, that Monu Manesar, the man who was linked to killings of 2 people who were alleged cow smugglers in Bhiwani this February. The man, Monu Manesar, isn't yet arrested despite an FIR registered against him. Now, it appears that he has come back in the news here, particularly with the violence that's erupted in Nuh, that's killed nearly 6 people. Now, what's triggered here is that there was talk that Monu Manesar will be part of this yatra that was rolled out by the VHP. And that's what is said to have instigated the crowds. Now, while speaking exclusively, though, to India Today, Monu Manesar says that he did not even attend the rally and that he blames many of them from the opposite side, basically accusing the Muslim side of carrying AK-47 rifles and indulged in this kind of carnage. He accuses the Muslim side being instigated by a Congress MLA of that region, Maman Khan. Listen in. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं, लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक?
आपने देखा होगा उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो। तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। Well, we see Monu Manesar has spoken to India today. This is the same man who's been accused of killing 2 people and what is really attributed to this flare-up that we saw in Nuh. He still remains absconding, no arrest on him. I'm going to cut across though to give you a quick snippet on the violence that's escalated around the Haryana area, the state of Haryana that literally is dangerously close to the national capital. To give you a sense here, we're seeing in Gurugram at this point, Section 144 has been imposed. All the petrol pumps have been asked to stop selling loose petrol. Loose fuel has been restricted. And if you see, Gurugram, as you know, is barely a 45-minute drive from the national capital to Gurugram, to Haryana. We see that in Shona, at the moment, schools and colleges, educational institutions have remained shut. And remember, this is for the 3rd straight day. Violence began on the 31st of July. We're speaking on 2nd of August, and it still remains tense. And Shona is also very close to the national capital. Nuh, as you know, the area where the actual violence erupted is about 87 kilometers from Delhi, very close to Gurugram, about 87 kilometers from Delhi, and that's where the prohibitory order section 144 has now been imposed. That's the real volatile area. Sonipat, we are seeing Sonipat also an area where tensions has flared up, and that's about 43 kilometers from Delhi. Sonipat, Haryana is very close to Delhi, and again there too we believe that commercial establishments have been shut for the moment. Palwal, Section 144 imposed. This is also one of the areas on 31st of July when violence broke out in Nuh. The quick flare-up happened in the Palwal and Faridabad regions. So Palwal also 144 imposed about 95 kilometers away from Delhi. These are areas that are barely about 45 minutes, 1 hour or 1.5 hour drive from the national capital. And it's clearly what you see here. Many of the protesters of the VHP as well as the Bajrang Dal have now poured into the streets of the national capital demanding justice, claiming that their Hindu side were wronged. I'm cutting across to Alok Kumar, the VHP leader, who's speaking to my colleague Amit Bharadwaj. Let's have a listen. विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार सर, नूह मेवात में हालात जिस तरह के बदले पिछले 72 घंटों में, अब हरियाणा के अलग अलग जिलों में उसी तरह से कम्युनली टेंस माहौल है, ऐसे में वीएचपी का प्रदर्शन कितना सही? अगर कोई ये अपेक्षा करता है कि वो हमला करेगा, हत्या करेगा, बसें जलाएगा, थाना जलाएगा और उसकी कोई प्रतिक्रिया देश में नहीं होगी, तो हम उससे सहमत नहीं है। ये प्रतिक्रिया जिहाद के खिलाफ, उस मानसिकता के खिलाफ देश का संकल्प प्रदर्शित कर रही है। ये होना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला, राव इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं कि ये उसमें फेलियर है, सिस्टम का फेलियर रहा, एक्सेप्ट कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह खुद कह रहे हैं कि किस तरह से प्रोसेशन में हथियार ले जाया गया, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह को जो तीर्थयात्रियों के हाथ में लाठी थी वो दिख गई और जो जिहादियों के हाथ में बंदूकें थी वो नहीं दिखी। ऐसी जो सेलेक्टिव व्यूइंग है, वो सेलेक्टिव व्यूइंग जिहादियों का उत्साह बढ़ाती है। और मैं हिंदू समाज की ओर से ये घोषणा कर सकता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिज्ञ
समाज के साथ खड़ा नहीं होगा और मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रमोट करेगा, ये समाज इसके बारे में सावधानी बरतेगा और इसका परिणाम होगा। राव इंद्रजीत सिंह को परिणाम देखना पड़ेगा फिर चुनाव में। मैंने कहा ऐसे सब राजनीतिज्ञों के बारे में हिंदू तय करेंगे कि क्या हो और परिणाम स्वाभाविक होगा। दो छोटे छोटे सवाल सर, जिस तरह से क्या आपको लगता है इंटेलिजेंस का फेलियर है, अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि दोनों आपने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि उधर भी बंदूक था, तो इंटेलिजेंस फेलियर मान रहे हैं इसको आप? मैंने कहा ही है, मोन्यूमेंटल फेलियर कहा है। मोन्यूमेंटल फेलियर। हाँ, तो क्या एक्शन की आप मांग कर रहे हैं इस वक्त हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से? दोनों कर रहे हैं, सब अपराधी भी पकड़े जाए और जिनसे लापरवाही हुई है कर्तव्य निभाने में उनको भी दंडित किया जाए। तो आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिज्ञ वोट बैंक की वजह से हिंदू समाज के साथ खड़ा नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट अटैक राव इंद्रजीत सिंह पे करते हुए कह रहे हैं कि उसको ये बारे में तय करेगा हिंदू समुदाय। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठा रहे हैं बस राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर कि उन्हें दूसरे पक्ष के हथियार क्यों नहीं दिखे। लेकिन ग्राउंड पे हालात ये हैं कि वीएचपी के अध्यक्ष खुद उस मोर्चे को लीड कर रहे हैं जिसने फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले अहम टोल प्लाजा को ब्लॉक कर रखा है। और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देश भर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जगह जगह पे कर रहा है। वीडियो सहयोगी राजा कुमार के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। All right, now let me cut across to the Congress and the INLD who have targeted the BJP and the JJP government in Haryana over the new violence, alleging that the ruling parties here have failed to ensure law and order in this state of Haryana. Political reactions pouring in, cutting across. जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे हुए एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? Now, in the communal violence, it's usually the poor who suffer the most. In Badshahpur, a shop of an old man was burnt down, but what was really his fault? He is ultimately the victim of this mayhem. Shreya Chatterjee brings us more. पुलिस के सामने किया ये? एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास की घटना है? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगा कर चले गए। पुलिस से कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी? हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाना, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे कुछ सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें यहाँ जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। All right, here's a big update on the Muslim side moving the top court against rallies. A plea has now been filed by the Muslim side in Haryana, claiming that rallies are being launched across parts of Haryana, and this has triggered communal tensions. It's going to flare up. Situation is serious.
The police says Nuh and Gurugram at this point remains absolutely tense, and they want the Supreme Court, to hear the Muslim side's plea at the earliest. So 2 p.m. is roughly the time that the Supreme Court is going to take up the Muslim side's plea. The Muslim side claims that there are rallies that even as we speak being conducted, and that's flaring communal tensions. So it's likely that the Supreme Court will take up the matter at 2 p.m. Urgent hearing has been sought on the Haryana violence. Kanu Sharda, who's tracking court for us, brings us more. Kanu, give us an understanding on the Muslim side reaching the Supreme Court. They've knocked doors of the Supreme Court, claiming that they are worried, they fear communal flare-up yet again. 3 days of the violence, finally we see police deployment. Situation seems calm, but they allege that there are rallies still being conducted in Haryana and they fear of backlash. Yes, Nabila, the Muslim side have moved the Supreme Court today in an already pending matter related to hate speeches against a particular community. So Muslim side have categorically told the Supreme Court that the situation is really volatile over there and this needs to be heard urgently. That keeping in mind the urgency of the matter, the Chief Justice of India has agreed to hear this matter. It is still not clear that which court will hear this matter in the Supreme Court. But yes, we are hearing that the hearing is at 2 o'clock. The limited prayer in the petition is that the communal tension will increase if these rallies which are being conducted in Delhi-NCR are not stopped immediately. So keeping that situation in mind, the Supreme Court has agreed to hear this matter. So we'll come to know in a very short time from now that what the court will decide, whether the rallies which are presently going on in the national capital will have to be stay away or they can continue. So very shortly we'll come to know about At the moment, we know that the police across Delhi NCR region have restricted any protests. I mean, they've not given permission for any kind of protest, but we still see the VHP and the Bajrang Dal out on the streets along the border areas. And those are the images on the left-hand side of your screens of this morning. Despite restriction and no permission to protest, we see hordes of people from the VHP and the Bajrang Dal who've lined up along the border areas, Faridabad, Delhi border, demanding justice. Now, the Muslim side has reached the top court, the Supreme Court, saying that they are worried, they are scared, they're asking for intervention and more importantly to stop all rallies that are still being carried out allegedly in Haryana. All right, on that note, I'm slipping into a short break. You could log on to indiatoday.in. You could also download our app for a lot more. Stay with us. I'm going to come back with all the updates coming in from Haryana. % of households in Delhi surveyed have a family member with conjunctivitis. 17% of households in Maharashtra and Karnataka have someone with a pink eye at home. This is revealed by a survey done by Local Circles, a community social media platform. Pune city has over 8,000 cases. Pimpri Chinchwad has over 1,000 cases. Mumbai city has seen a 20% increase. Hyderabad, Bengaluru, there is a surge just everywhere. Pink eye has become very common during monsoons, and the primary reason is increase in the growth of bacteria, courtesy the humid weather. The adenovirus strain also is causing a surge in infections. This strain is relatively safer and does not cause eye damage. Pink eye is caused both by adenovirus and bacteria. A healthy person thinks that his eyes are getting watery, or foreign body sensation, or little redness or swelling. The commonest first diagnosis would be epidemic keratoconjunctivitis. So what should you do? Don't touch your eyes. Wash your hands, wash your eyes with ice cold water. So how does this spread? Now, as opposed to popular belief, looking at an infected patient in the eye does not lead to the spread of infection. Using common makeup and towels leads to a spread in infection. The other myth is that wearing specs or shades will prevent the spread. Doctors say it won't. Putting sunglasses does not stop you
that you will not get it. The the invasion of the virus or the bacteria is through touch. So avoid touching your eyes or somebody's eyes or somebody's face or shaking hands. Many forms of pink eye, in fact, aren't contagious at all. Eye irritants like certain chemicals and seasonal allergens can cause the same pinkness. This, however, appears to be related to monsoon, say doctors. What should you be doing to prevent pink eye? Ensure hand hygiene. Use a sanitizer at all times. Do not touch your face. Get kids to develop a habit of keeping their hands clean since they are more susceptible. Should you be staying at home if you have a pink eye? People with bacterial pink eye must stay home for 24 hours after they begin taking antibiotics. People suffering from pink eye caused by allergies or a virus can attend school or work normally after they confirm the cause with the doctor. Well, do you have a pink eye? This is what you must do. Get rid of contaminated contact lens cases or cleaning solution that you would have used. Use only disposable contact lenses. Discard the eye makeup used the time when you had the infection or when you started to get the infection. Most of the time, pink eye is a minor infection. In some cases, it even resolves itself within 7 to 10 days. Consult a doctor because swelling, discoloration and itching of the eyes may indicate a more serious condition. In New Delhi, Sneha Murdani for India Today Television. Firstly, Chetan, I'd like to say we've never said we want to be asset light. The reason in 2014 was not because we wanted to be asset light, because if you remember, our original decision in 2014 was to do the investment ourselves. We were going to have all this Gujarat investment on ourselves, on our books. So we had no intention of being asset light. We became asset light because we got an offer from Suzuki, which when we finalized it, came out so much in our benefit that we said, okay, we'll not have these assets on our books, but we will get a lot of extra benefits by doing this arrangement. So asset light was never our intention. This arrangement was made to get extra benefits more than what any other company in the world gets. And we got those benefits. Right. Also, sir, what happens to the domestic market for Suzuki and Maruti both combined? Will Suzuki take a hit in any way, or will Suzuki's identity in India will be a little, diminished with this announcement? Or are you looking at a separate plan for Suzuki? Maruti is a Suzuki subsidiary. The presence of Suzuki in India is entirely through Maruti. Okay, they have their own battery manufacturing plant, but otherwise their presence in India is actually all through Maruti. And anything which is done in the best interests of Maruti is also in the best interests of Suzuki. Both companies have to rise together. We can do things which will be in the benefit of Suzuki, but not in the benefit of Maruti. But that will ultimately hurt Suzuki in the long run. So Suzuki is very conscious of this fact. And this decision is a joint decision taken with the Suzuki management and us to make an arrangement which will be to the mutual benefit of both, but especially for Maruti and Maruti shareholders. Right. Okay. Also, sir, the big question that your shareholders would ask you, what should the shareholders do now? Are they in for some kind of troubles, or is this a happy news for them, sir? We will. After the board meeting discusses, the mode of buying the shares, go to the shareholders, explain to them what I'm talking to you about, the whole rationale of this, and what we think
should be the best way of buying the shares from Suzuki. And then, of course, it's the shareholders' decision whether to support that or not, because we need a majority of the minority shareholders to support whatever recommendation we make. We cannot take all these decisions without the approval of the minority shareholders. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. All the updates coming in from Haryana, the riots, and of course the angles that we are bringing to you right from ground zero. Right here, the headlines first. Horrific FIR details speaks about the Haryana violence and says that a mob of 700 chanting slogans fired at a cop. One cop shot in the abdomen, the others injured. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Cow vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots. He blames Nuh's Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyant Chautala though blames the organizers for the violence. आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। Backlash of Haryana violence as we see now in Delhi and UP and Delhi sees protesters now on the streets demanding justice. VHP and the Bajrang Dal conducting flag marches in Noida as protesters hit the streets of East Delhi as well. Another shot in the arm for the centre in the parliament after BJP and the YSRCP TDP may back the Modi government on the Delhi ordinance as well as the no trust ward. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. All right, let me take you through all the top developments coming in on the Haryana Nuh violence. Haryana's Nuh at this point remains gripped in tensions. 3 days in a row, curfew has been extended. Around 41 FIRs have been registered. 116 people have been arrested so far. In Nuh alone, at least 5 people were killed in the violence. Nuh's violence has rocked Gurugram as well. Shops set ablaze, vehicles burnt. The mob ransacked shops belonging to the Muslim community. At least 7 stores have been set ablaze. Cops have conducted a peace flag march. Right-wing Hindu groups, VHP and the Bajrang Dal now staging a protest against Nuh violence at various places, including the Delhi-Haryana border in Badarpur. Security has been beefed up at border areas amid the protests. They've also planned a protest march from Manesar as the situation remains fragile in Mewat region. Monu Manesar, the cow vigilante who's been accused of murder, who's at the center of violence and at the epicenter here, claims that he wasn't present in the yatra and that the violence was stoked by Nuh's Muslim leaders, including Congress's Mamang Khan. Amid communal flare-up in Nuh, Haryana Deputy Chief Minister has come out in support of the people of the region, blames the rally organizers for chaos in Haryana, says they did not give proper estimation of the crowds who would be joining for their procession. Now, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is currently on the edge. India Today has accessed an FIR now that blames nearly 700 people, a strong mob, that were chanting slogans, carried out illegal weapons and appealed
In fact, the police now appealing for peace at this point, but the FIR details are quite serious. We believe the FIR suggests that a mob of nearly 700 chanted religious slogans, shot at one of the police officers, and also held nearly 40 people hostage in Ram Temple. Security has been beefed up within the region. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. At least 6 people are killed. Now, those belonging to the Muslim community, we believe in Badshahpur, were attacked. Their shops were burnt, set ablaze. The mob ransacked their belongings and their community members. In fact, we see at least 7 shops, we believe, have been set ablaze, with the RAF now conducting a flag march in Badshahpur, the real violence-gripped region. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIR रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इस वक्त मैं नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। 31 जुलाई को इसी शिव मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब आज तक इंडिया टुडे के पास नल्हड़ पे उस दिन जो हिंसा हुई थी उसकी FIR की कॉपी हाथ लगी है। FIR सुरक्षा में यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ही दर्ज कराई है। FIR में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहां पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहां पर ITBP की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। FIR में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिसकर्मियों ने किया है। पुलिसकर्मियों ने बताया है कि जब यहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत है उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे। वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो शोभा यात्रा के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, वो जो 600 से 700 की उग्र भीड़ थी, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, अवैध हथियार थे, उससे लगातार पुलिस पार्टी पर और यात्रा में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं। पुलिसकर्मी जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं वो एक के बाद एक भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। लेकिन FIR में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो खुलासा ये हुआ है कि ये जो खेत आप देख पा रहे हैं मंदिर के आसपास और ये जो पहाड़ी देख पा रहे हैं, इन पहाड़ी इलाकों से जो उपद्रवी हैं, 600 से 700 के लगभग जो उपद्रवी थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। इस हमले में जो ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो तकरीबन 3 से 4 हजार के लगभग जो यात्री थे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, ये जो सामने की तरफ मंदिर आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर में पुलिसकर्मी सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को उस मंदिर में कैद कर लेते हैं। मंदिर में 4 से 5 हजार यात्री कैद होते हैं और जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से लगातार इस मंदिर और आसपास की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिसकर्मी भी
जवाबी फायरिंग करते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर कोहराम मचता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जलाभिषेक में शामिल जो गाड़ियाँ थीं उसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि जब यात्रा निकल रही थी और उपद्रवी आगे बढ़ रहे थे तब उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया था। तो एफआईआर में काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो शिव मंदिर है उसके आसपास की पहाड़ियों से, खेतों से 600 से 700 की उग्र भीड़ आई, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियार थे और लगातार वो शोभा यात्रा पर, पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मेवात, आज तक। Well, those are some really important points that Arvind Oja has brought to us. What the FIR says and suggests, I'm going to break that down for you here. A quick look at the complaint that's been filed. We know that there are nearly 41 FIRs that have been filed in the Nuh violence case and, of course, even the surrounding areas. But the one FIR that India Today has accessed, of course, speaks about that very day when hordes of people took shelter at the Nalhar Mandir due to the violence that erupted. So, breaking that down for you, we're seeing the FIR that speaks of a riotous mob who allegedly chanted pro-Pakistan slogans and moved towards the Nalhar temple. The FIR speaks of that mob firing at police officers who were guarding the area, and stones were pelted. In fact, one police officer was also killed in the attack. The mob were armed with illegal weapons. Now, that's precisely what the question here is. Where did they access illegal weapons? We believe that the rioters on both sides had weapons, and illegal ones, of course, illegal ones. AK-47 also, some of them had brandished, is what we hear. Of course, the police is investigating on that to verify those statements and the complaints that have been filed. But from the FIR that we bring to you here, Shiv devotees who were part of that Shobha Yatra were the ones who were particularly targeted. The riotous mob fired at the Shiv temple as well while that Yatra was on. So these are elements of the FIR that we're bringing to you as the mob, we believe, gave out the Ram temple, and nearly 40 pilgrims were held hostage inside. One cop was also shot dead. Now, this is one of the FIRs that the insides of which we're bringing to you. There are nearly 41 FIRs that have been registered so far in the Haryana violence. Now, let me cut across to a lot more as we bring to you. In fact, we hear that the rioters had gathered and they were pre-planned about this attack. What we hear is that there was a lot of planning that was done weeks ahead, knowing very well that this yatra is going to be passing the areas which are Muslim dominated. So the question is, why wasn't intelligence reports taken seriously by the police? Now here, as I show to you here, a lot of the mobs there fired at the police officers, stones were pelted at police officers, and this is precisely what the FIR really suggests. So now, at this point, we know that the FIR that has been filed says that the mob responsible belong to both communities, but largely targeting, at this point, the reference is towards one community that largely speaks of their attempt to attack a Shobha Yatra. But of course, the Muslim side has their story saying their mosque was burnt down, their imam was killed inside the mosque. So a lot more that needs to be uncovered. It's the police to investigate the matter. जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, जब देश भर से पलायन चल रहा था,
तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पे सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो ऐसा लगता है कि हुआ है, क्योंकि जो है ये ब्रजमंडल की जो यात्रा थी ये कोई पहली बार नहीं निकल रही है, ये पहले भी निकलती रही है, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हमला किया गया है। उसकी पूरी जांच चल रही है और जांच के तहत जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है, वो पल पल की जानकारी को हासिल कर रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है, जो कोई भी इसके अंदर संलिप्त हो, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर और दुरुस्त होता तो मुझे लगता था कि कुछ हद तक इसके ऊपर जो है बहुत समय पर काबू पाया जा सकता था। हरियाणा भी अब मणिपुर की तरह बदल रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर ये वायलेंस हुई? ये जो वायलेंस सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, सरकार ने कानून व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन नहीं करी। इनके खुद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे से चूक हुई है। इनके केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसी स्थिति हुई है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा साजिश इसके अंदर हुई। इनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके अंदर इंजीनियरिंग हुई है। इनके विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है। तो अगर इनको सब कुछ मालूम था तो क्यों जानबूझकर हरियाणा को जलने दे रहे हैं? All right, now Monu Manesar, who was linked to killings of two alleged cow smugglers in Bhiwani this February, is now back in the news after communal violence erupted in Nuh, where 6 people were killed. Now, violence was triggered after rumors of Monu Manesar himself attending that VHP Yatra surfaced. While speaking exclusively to India today, he's claimed that he wasn't even part of that rally and blames it on the Muslim side for carrying AK-47 rifles and that they were the ones who stoked violence in the Muslim area of Nuh. He accuses Congress MLA Maman Khan of instigating crowds. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारी गण थे उस यात्रा में। मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग। और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा?
मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। All right, now Bajrang Dal, the VHP have upped the ante against riots that broke out in Nuh amidst the already tense atmosphere. Situation has escalated further with Hindu body groups staging a protest in the national capital. The protesters even blocked national highways on Badarpur border. Delhi police officials stated that permission was not sought for any rally or meeting at a public place. Bajrang Dal leaders and the VHP workers have hit the streets of the national capital and adjoining areas of Noida, Uttarakhand's Dehradun and Haryana's Panipat, calling it in fact, this security has now been beefed up across North India. Delhi and Noida has been put on high alert. Not just this, family of the victim who was killed in the violence stormed the streets of Panipat seeking justice. At least 6 people were killed in the riots that rocked the state of Haryana. Among them, at least 2 of them were home guards and 4 civilians. जो हमारा लड़का गया था परसों से सेवा में गया था, देश सेवा में, और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है 1 साल से। बहुत अच्छा लड़का था, किसी चीज़ का ऐब नहीं था, बहुत अच्छा था, परिवार में अकेला था। और हमने न्याय चाहिए, जांच चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त चाहिए। All right, some big update coming in as the Supreme Court has stepped in to review the situation in Haryana and Uttar Pradesh as pleas have been filed asking for intervention. Now, the Supreme Court says and directs the centre to ensure no hate speech happens at any of these rallies conducted by VHP and Bajrang Dal. Supreme Court says if needed, additional forces should be deployed and asks for rallies to be videographed as well, that these rallies must be videographed, no hate speech should be allowed, and if needed, more security must be called in. The next hearing would be on the 4th of August. This is a big update coming in as the Muslim side had approached the Supreme Court asking for intervention, claiming that rallies are being held across. This is, of course, in fear that they have knocked on the doors of the apex court. And what we know here is that the VHP and the Bajrang Dal are carrying out indeed rallies across the national capital, different parts, almost on the periphery of the national capital, different border points. We see the Bajrang Dal and the VHP who have gathered in large numbers as the Supreme Court, observing the situation, directs the centre to ensure that there are no hate speeches being made at these rallies. Supreme Court says, if needed, additional forces should be deployed and asks for rallies to be videographed. Says that these rallies must be videographed. If any hate speech is delivered, then that should be clamped down. Rallies can go on though. The next hearing is on August 4th on Friday. All right, this is a big green signal, it appears, coming in from the Supreme Court. On one hand, the Supreme Court says that no hate speeches should be allowed. On the other, it also signifies that the VHP and the Bajrang Dal can carry out their protest. As we know, the Delhi police had restricted gatherings anywhere in the national capital. Protests were banned. And now we hear the Supreme Court saying that hate speeches should be avoided, but more or less looks like the rallies can go on. Kanu Sharda, tracking court for us, gives us more. Kanu, please tell us, what did the Supreme Court say? We believe a direction has been given to the centre to ensure hate speeches are not delivered and these rallies must be videographed. But it also suggests that protests and rallies of this nature can be allowed. Yes, Navina, the rallies for now can take place. There were 23 rallies which were supposed to happen in Delhi-NCR today. Major of them have already been done as informed by the petitioners in the top court. So 5 to 6 rallies which are expected to happen during the evening hours in the sensitive areas of Delhi. The centre has been told categorically to give adequate security forces over there and to record every rally. Use of CCTV was recommended by the Supreme Court and also the videographing of the entire event.
The court also went on to state that the earlier order of the top court, which categorically made it clear that no hate speeches can happen targeting one community, should be adhered to, and notices have been issued to the state of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, where these all kind of VHP Bajrang Dal rallies are being held right now. So very clear direction from the Supreme Court that no hate speeches can happen, and this is because the Supreme Court has already decided on it. The advocate appearing on behalf of Center has told that the law and order situation will be taken care of, and all other facts and of the cases, including the new violence which happened yesterday, all the reports will be handed over to the Supreme Court on August 4 when the matter will be heard again. All right. Kanu, on whose plea has the Supreme Court given that direction? We believe multiple pleas have been filed before the Supreme Court. Give us an understanding on those who have sought the top court's intervention. Nabila, these are the Muslim side who is the original petitioner in the main case, where they have alleged in the past also. Since 2022, there were some hate speech cases which have been occurred in the entire country, and the matter was ongoing before the Supreme Court. In 2023 also, a similar order of no hate speech should be given to one community, targeting one community, was passed in the past also. So the Supreme Court today has just reiterated that the orders passed in 2022 and 2023 should be adhered to, and there should be no hate speeches. This is and the law and order situation needs to be monitored very carefully. All right, thank you very much, Kanu Sharda, for joining us on that, as we hear a clear direction from the Supreme Court to avoid any hate speeches. This is a direction gone to the centre to ensure additional security forces to ensure that these rallies don't flare up, no hate speeches are made, and more importantly, videograph these rallies just to contain any inflammatory speeches. That apart, this suggests that rallies can go on. Supreme Court hasn't really put a stop to these protests and rallies. Delhi police had restricted the protesters from assembling, but it appears the Supreme Court's order now, in a way, paves the way for these protesters to come out on the streets. All right, we are slipping into a short break. On that note, we'll be coming back with a lot more on Haryana's violence and the state that still simmers. In fact, the top court will be hearing the case on 4th of August. This is when the case will be taken up yet again. Several pleas filed with the top court. The Muslim side has knocked the doors of the Supreme Court, saying that they feel threatened, and there are rallies being conducted, and this is going to really flare up the situation. Communal tension could flare up a lot more than already is. The Supreme Court, hearing the matter with immediate effect, took it up on urgency and has said that has very strictly directed no hate speeches can be made, but also did not put a stop to any of the rallies that are being currently pulled off. Along the border areas of Badalpur, Faridabad, we see protesters who assembled. हमने जो है लास्ट 2 डेज में कर्फ्यू भी लगाया था to improve the law and order situation. उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में. 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं. साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं. हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़. साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है. उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह कि कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे, 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे. एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन के आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए. तो एज़ फार एज़ न्यू जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं. इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री वरुण सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं. सर बताया उसकी टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी, क्या टाइमिंग है? क्या आज हमने 3 से 5 बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और
इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करके भी लेट। कंडीशन क्या होगी सर और कौन-कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पूरे नूह में तो नहीं लगा हुआ? जी नहीं, कर्फ्यू सभी चारों सब डिविजन्स में लगा हुआ है। चारों सब डिविजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज, और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी तो वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे। कंडीशन क्या होंगे सर? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए, कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज़ हैं, उस टाइप का कोई सामान आपने ख़रीदना है, कोई आपने अनाज ख़रीदना है, कोई किसी ने दूध चावल ख़रीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना, जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू रहे। सर स्कूल कॉलेज का कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फ़िलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस लेने के ऑर्डर्स करवाएंगे। स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें। सर कर्फ्यू में ढील का जो मुद्दा है, दुकानें खुलनी भी तो जरूरी है जी, सामान लोग लेके कहाँ से जो पाएंगे? तो इसकी इसकी जो हमने मीटिंग सभी कर ली थी, जिसमें हमने मार्केट एसोसिएशन, मंडियों से, जो हमारे दूध के जो बूथ हैं, जो वीटा से हमारी सप्लाई फरीदाबाद से होती है, तो उनको हमने सुबह ही ये दिशा निर्देश दे दिए थे कि प्रॉपर स्टॉकिंग कर ली जाए, प्रॉपर अपने जितने वेंडर्स हैं उनसे संपर्क साध लिया जाए, ताकि जब दुकानें खुलें तो लोगों को जो है समयबद्ध तरीके से सामान मिल जाए। इसी कड़ी में जैसे जैसे आगे और डील मिलती रहेंगी तो सुचारू रूप से चीज़ें और अपनी दिशा पकड़ती रहेंगी। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी टीमें लगी हुई हैं? देखिए अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है। आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ था। सर जितनी एफआईआर हुई है उन एफआईआर में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जो जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, जिन्होंने अपने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है कि एक ग्रुप आया 600-700 लोगों का ग्रुप, उन्होंने एक तरीके के नारे लगाए और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया है, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है। ऐसा भी कई उसमें आया है कि कई गोली लगी कई पुलिसकर्मियों को भी। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि ये अचानक से हुई हिंसा है या पुलिस को टारगेट करना ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था, ये साजिश थी? और किस किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया सामने से? देखिए अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है इसके अंदर इसके विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की। नहीं, ये नंबर तो
ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे, वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। एक बड़ा सवाल है, हिंसा से पहले 30 तारीख को तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग कि वहां पर पहुंचना है। क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? फोर्सेस कहाँ पर थे? और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई, और क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बिजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीज़ें हैं। एक अपने क्या नाम है मोनू मानेसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुँचे वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पे जिसकी वजह से भड़का है या हालात दिख रहे हैं? क्या देखिए, ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी मेवात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। वायरल हो रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि यहाँ मंदिर के पास पहुंचिए, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम चीज जो वायरल है। क्या इसकी जानकारी आप लोग तक थी या नहीं थी? सर यात्रा संवेदनशील इलाकों से निकलनी थी, इनपुट आप लोगों को आ रहे थे, लेकिन जिले के दोनों बड़े अधिकारी छुट्टी पे थे, तो ये क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से? क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है कि 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स क्या ये पूरी थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का कि जैसा कि मेरे साथी वरुण ने बताया कि इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफ़े नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी, इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहाँ पे पहुँच गए। ये ज़रूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है। हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है। इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी सारे विषय जो हैं डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई हैं और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसी जांच का उसमें कोई वो आएगा तो हम आपके साथ रख सकेंगे। जी लोकल लोग हैं या ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे। 116 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक, क्या कौन है वो लोग, क्या उनकी पहचान हो पाई है और कितनी इसमें महिलाएं हैं, कितने उसमें पुरुष हैं? अगर आप इस पे थोड़ा सा क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड है जो पकड़े गए हैं कुछ लोगों का? देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड का भी चेक टाइम लगता है आपराधिक बैकग्राउंड को चेक करने के लिए। उनके हमें कई सारे पोर्टल्स के ऊपर प्लस वो जिस जगह के रेजिडेंट हैं उस थाने के भी हमें उसके रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इसमें महिलाएँ नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, सभी टीमें इसमें जो हमारी CIA की भी हैं
और जो STF की भी हैं, वो पूरी तरह से इसमें हर एंगल को जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है हम आपको पूरी जांच का विषय है कि साइबर अपराध नाबालिग बच्चे भी दिखाए गए हैं कि आपको नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी दी है क्या, तो किस तरीके से वीडियोस में दिख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे चाहे नाबालिग बच्चे भी हैं जिनकी भी भूमिका निकल के आएगी वो सभी इनकी गिरफ्तारी होगी। सर आपका कहना है कि आपकी 800 लोगों की तैनाती थी, 800 आपका पुलिस बल था। नलहड़ मंदिर की जितनी वीडियोस आई हैं, हम खुद उस मंदिर के अंदर मौजूद थे। नलहड़ मंदिर की FIR में भी पुलिसकर्मियों ने ये लिखवाया है कि किस तरीके से खेतों के जरिए और पहाड़ी के जरिए टारगेट किया गया, मंदिर को फायर किया गया, एक तरह के धार्मिक नारे लगाए गए और वहां पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स वहां पर मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थी? शुरुआत में बहुत गिनती के पुलिसकर्मी वहां पर थे, जहां पर इतने सारे इस यात्रा से जुड़े हुए लोग और बाकी की जनता थी वो चारों तरफ से घिर चुके थे और जब उन्हें निकाला गया वहां से, बहुत बाद में जाके निकाला गया, तो भी बहुत गिनती के वहां पे कमांडोज थे और बहुत रिस्क में रख के लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि जो मंदिर की जो बात कर रहे हैं आप, मंदिर से यात्रा शुरू होकर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है मंदिर पे ही डिप्लॉयड थी, पुलिस फोर्स पूरे रूट पे डिप्लॉयड थी। और जो आप बता रहे हैं जब ये व्यक्ति वहाँ से निकाले गए थे तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं थी, उस दौरान वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद स्वयं मौजूद थे। उस दौरान वहाँ पे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के 2-3 SPs मौजूद थे, वहाँ हमारे सिविल प्रशासन के SDMs मौजूद थे, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बसें पहुँचाई गई। तो ऐसा नहीं है कि जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ, परंतु जैसे आप समझिए कि पूरा रूट पे जो है पुलिस प्रोवाइड की जाती है, कोई एक स्पॉट पे प्रोवाइड नहीं की जाती। वो ये था कि यात्रा वहाँ से शुरू होकर और फिरोजपुर झिरका तक जानी थी। सर यात्रा का कितने लोगों का परमिशन दिया गया? सर पहली हिंसा हुई और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट में हिंसा कई और जगहों पे हुई। तो क्या आपस में कोई कनेक्शन है जो अलग अलग जगहों पे जिन लोगों ने जिस भीड़ ने हिंसा की, आपस में कोई कम्युनिकेशन था इनका? नंबर 1। नंबर 2, कितनी PCR कॉल उस दिन पुलिस ने रिसीव की और सर कितनी देर तक हिंसा चली, ऑफिशियली कब तक पुलिस ने कंट्रोल किया? देखिए ऐसा है कि अगर आप बात करें कि उस वक्त पे जो इंसिडेंट्स जिस तरह से हो रहे थे, पुलिस जैसे ऐसे कॉल्स आ रही थी, आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स एज ऑफ नाउ, तो उस पर जैसे जैसे पुलिस के पास इंसिडेंट की रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्टिविटी करी है। जहाँ जहाँ पुलिस संभाल पाई अपने पुलिस बल के साथ, हमारे सभी जितने भी फोर्स थी, DSPs थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मोर्चा संभाला था और एडिशनल फोर्स के लिए उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट प्लेस की थी। दूसरे जिलों से भी फोर्स आई थी और इसी प्रकार से पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। आपस में कनेक्शन जिन जगहों पे सर हिंसा हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ हिंसा हुई थी। देखिए मैं बार बार आपसे यही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रमुख जो विषय है कि ये लोग जब जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ये किस प्रकार से किसकी कॉल पे इकट्ठे हुए हैं और किसने इनको मोबिलाइज किया है और किस प्रकार से आपस में इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में आज कमेंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मानते हैं ना कि कॉल किया गया, लोगों को मोबिलाइज किया गया। देखिए वो तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि अब जो विश्लेषण में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कॉल की, दोनों तरफ से हुई, तो ये तो जांच का विषय है ही कि कौन व्यक्ति किस तरह की कॉल से जो इमोशन, किस तरह की कॉल के ऊपर जो है व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ या वो खुद से मोटिवेटेड था, वो एक्यूज्ड की इंटेरोगेशन के दौरान ही आएगा कि वो किस प्रकार से मोटिवेट होकर वहाँ पर वो इस तरह की इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। All right, cops of Haryana, they're trying to establish on the security forces that have been deployed and, of course, revisiting what really happened. A lot of questions raised, a lot of answers given, but even at this point, we're seeing Haryana, the state, still simmering. I'm going to slip into a short break. We'll be right back with a lot more on the angles on these communal clashes. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable,
Data analytics, the only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker, the Political Stock Exchange, with Rahul Kanwal, only on India Today. Diet sodas, sugar-free tablets, artificial sweeteners. Do all of these give you a sense of assurance that you are staying away from sugar and that these are healthy alternatives? Well, it is not that simplistic as you think it is. Each of these artificial sources of sugar are unhealthy. Let us break this down for you. Diet soda is a go-to for people who love the taste of regular soda but can do without the sugar and calories. An average can of regular cola may contain a whopping 37 grams of sugar, and consuming too much sugar is linked to outcomes like obesity and poor heart health. So it makes sense that you may seek out a sugar-free alternative. But while drinking diet soda does help people reduce their sugar intake, this simple act can also expose a person to other ingredients that may be linked to some other health problems. The acidity in certain types of soda can lead to tooth erosion. Drinking excessive amounts of diet soda made with caramel coloring may result in teeth turning yellow. Some research suggests that artificially sweetened drinks are associated with a greater risk of obesity. If you opt for diet soda that contains caffeine, you may have trouble getting some much needed shut-eye at night. Diet soda is void of calories and sugar. Certain varieties can contain phosphorus in the form of phosphoric acid. This mineral, though important, can play a positive role in bone health, but consuming copious amounts of phosphorus can negatively impact the calcium-phosphorus ratio in your body. When the sugar increases in the blood, that means when the blood glucose increases, then it leads to many comorbidities like obesity, diabetes, fatty liver, then risk of cancer, heart attack also increases. There are mood alteration leading to irritability, then there's sleep disorder, and many more things can happen. You have come out very strongly against what has happened in the railway compartment, the cold-blooded murder of 4 people, and then what's happened in Nuh Hindu-Muslim violence. Let's get it clear. You have called the railway compartment incident a terror attack. Have you jumped the gun? Because the FIR is very clear. It says there is no communal angle, at least no communal angle is specifically mentioned in the FIR. Should one be more cautious in the times in which we live before suggesting it is a communal crime? The reason I've called it a terror attack is because this was a man who was in uniform, and he had first assassinated or murdered his superior AS officer who belonged to the tribal Meena community. Then he went into 3 different railway compartments and identified Muslims who were having beard or wearing a cap, and then shot them dead. In fact, there is a video still available wherein this man who he shot, who's cringing in pain, who's turning from right side to left side, subsequently he died. Unfortunately, he's from Hyderabad, a place called Bazar Ghat. So this man went around 3 compartments of the railways, identified Muslims with their attire or with their beard, and shot them dead.
And in a video he says that इस देश में रहना है तो योगी, Modi और Thackeray. Now, unfortunately, the government of India wanted the Twitter to remove my tweet, and unfortunately, the Twitter had succumbed to the government pressure tactics, and that tweet of mine has been removed from. It cannot be seen in India. No, that So is because again these are very sensitive. No, Mr. Owaisi, that's because these are very sensitive issues. You know, this is clearly a killing that needs investigation. No one doubts about it. It could well be a hate crime. You could be right that it could be a hate crime. The only point is, in the times in which we live, one has to be a little cautious. That's all I'm saying. Well, Rajdeep, whatever times we live in, we have to say the truth clearly and loudly without mincing words. I will reiterate again that it was a terror attack done by a person who was radicalized and who had become extremist because of the conducive atmosphere of radicalization and extremism that has been created by the ruling party in last 9 years. And that is why we see that this man has no fear. He's standing at a dead body with his licensed weapon. Welcome back. Now, the question here is who's really triggered the violence in Haryana? There's blame game over riots in the Nuh region between cow vigilante Monu Manesar and the Congress MLA from the Nuh region, Maman Khan. A video has now emerged where Maman Khan, speaking months ago in the Haryana Assembly, speaks of how, or rather he openly threatens to target Monu Manesar if at all he comes anywhere close to the Mewat region. This video has now gone viral as the BJP has launched an all-out attack at the Congress, claiming that Amit Malviya of the BJP cites the video to claim proof that Congress has been behind instigating riots in the Mewat region. Remember, Haryana government has defended the cow vigilante Monu Manesar, the man who's been accused of killing 2 people, who's still absconding. Haryana government says it wasn't Monu Manesar who instigated the crowds. In fact, Monu Manesar spoke exclusively to India Today, and he says that this is a Congress MLA, Maman Khan, who sort of instigated his constituency members to attack while the procession was on. Monu has claimed that Maman has triggered the crowds and he is wholly responsible for the violence that broke out. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरारता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यार सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डर जा रे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? Now, in communal violence, it's really the poor who ultimately bear the brunt. They suffer the most, and that's what we see here in Badshahpur, as a series of shops were burnt down. One of those shop owners speaks to India Today. Really had no fault of his. He got caught in the violence. Shreya Chatterjee, India Today's correspondent, brings us more. एक बार अगर आप बताएंगे कितने बजे के आसपास की घटना है? 3 बजे। 3 बजे के आसपास। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी आते थे और वो मारकूट कर रहे थे। मैं तो यहाँ था नहीं, न पता 2-4 मिनट बाद उन्होंने आग लगा कर चले गए। पुलिस से कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे पुलिस भी आई थी या नहीं? पुलिस भी आई थी। आई थी? हाँ, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन रात को मेरे को बुला के ले गए थाने को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ लिखाया
और अपने पास। क्या बोला आपको? कंप्लेन करेंगे, आगे कार्रवाई होगी आपकी? अल्लाह बेहतर जाना, होगी ना होगी। मुझे तो लिख के मेरा एड्रेस पैसा और रख लिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, ना कुछ बताया। कितना सामान होगा यहाँ पे? सामान बहुत था यहाँ, कूलर भी थे, रजाई गद्दे भी थे, थान भी थे। सारे आपके सामान यहीं पे थे? हाँ, सारा सामान, मेरे कपड़े लत्ते सारे कुछ, सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें ही जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। Slipping into a short break on that note, coming up on the other side as the death toll in Haryana now reaches 6, the communal riots. We hear that police deployment has been placed in abundance at this moment. So, cow vigilante in the meanwhile, Monu Manesar, as he speaks to India Today, denies his role in the riots. While you have at the same time, Chautala, who is a deputy of Haryana, who blames the organizers of the Yatra for not estimating the crowds that would arrive. A lot of blame game continues on who's responsible. Stay tuned, we're going to come back. Do you have a sweet tooth that you just can't help? The more you consume, the more you want. And that is how sugar gets us hooked. But for those wanting to break sugar addiction, there is hope. There are ways to do it, and there are several alternatives. First of all, let's tell you all about sugar and how much you'd actually end up consuming. Adults are to consume 5 teaspoons a day. That's how much women should consume. Men should consume 9, kids not more than 3 to 4. Let's now take a look at how much we're ending up consuming. Men and women are consuming about 22 teaspoons a day. Kids are consuming 24. Cut sugar from your diet and do yourself a favor. There are several advantages of sugar reduction. It will reduce your acid reflux. It controls irritable bowel syndrome. It reduces joint pains, brings down anxiety and fatigue, also tackles migraine. How then can you bid goodbye to sugar? Make a decision to do it now. Quit cold turkey. No added sugar in anything whatsoever. Go sugarless in your drinks. Tea and coffee without sugar. Reduce starch. Go for non-starchy vegetables like mushrooms, onions, green beans. Manage your stress. Well, if you do, your cortisol levels will be in check. Hunger, cravings will be in check. Get good sleep for lesser hunger pangs and better management of cravings. Here are the foods to pick and choose from if your cravings won't leave you. Go for a piece of fruit. Berries are rich in fiber and sweet. Sugar-free gum or mint is a great way to control your sugar cravings. Yogurt is a healthy snack that is high in protein and rich in calcium. Dates are the dried fruit of the date palm tree, which are highly nutritious and very sweet. Sweet potatoes are nutritious, sweet, and very filling. If you're craving something sweet, Are you worried that artificial intelligence will render you jobless? A United Nations agency assembled a group of robots at a news conference recently to address the concerns of human beings. 9 robots posed upright along with their creator at the podium in Geneva for what the International Telecommunication Union billed as the world's first news conference featuring humanoid social robots.
The agency invited reporters to ask the robots questions that sparked discussion about the future of artificial intelligence. In one of the answers that could trouble our politicians, the robots suggested that they could be more efficient government leaders. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. When asked about the rise of humanoid robots, they advised caution. That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. Organizers said the event was meant to showcase not just the capabilities, but also the limitations of robotics. To showcase the capabilities and how these technologies could support the UN SDGs, the Sustainable Development Goals. While robotics are not yet as mainstream as, say, generative AI, we wanted to demonstrate AI in action to you. In a world's first, this is the world's first press conference with 9, actually, we have an extra one, AI-enabled humanoid social robot. The event was part of the AI for Good Global Summit, meant to illustrate how new technology can support the UN's goals for sustainable development. Artificial intelligence has entered uncharted territory, and the world has started recognizing its abilities. Bureau Report, India Today. Oh, sorry. You are watching India Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting. India Today reporters fearless on ground. एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पत्थरबाजी इस समय यहाँ चल रही है, माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है. Facts, questions and first-hand reports. The charred vehicles that lie testimony to the kind of attack. Amount of arsoning that happened is proved from the visual that you right now see. 100% accuracy amidst the blaze. Police officers are combing in the area, and that is why the situation is under control.
We track the face of every story. इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। This is the kind of situation you see on the ground in Gurugram. India today, India united. Very good afternoon and thank you for being with us here on India Today. I'm Chaiti Narula getting you all the top stories. Let's begin this broadcast with the top headlines. Haryana FIR mentions unspeakable riot horror, says riotous mob chanted pro-Pakistani slogans, mob fired at cops, pelted stones. Death toll rises to 6 in Haryana riots case. Car vigilante Monu Manesar denies hand in Haryana riots, blames Congress MLA. Deputy Chief Minister Dushyan Chautala blames organisers for the violence. जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। Backlash of Haryana violence in Delhi and UP districts. Top court asks centre to ensure no hate speech in rallies. Orders videography of the rallies. Another shot in the arm for the centre in Parliament after BJP and YSRCP. TDP may back Modi government. TDP to back government on Delhi bill and no trust war. US charges former President Donald Trump with conspiracy to fraud the country and witness tampering in 2020 Capitol Hill riots case. Let's now take you through the top developments coming in from violence-hit Nuh. Haryana's Nuh remained gripped in tension for the third day. Curfew has been extended. Around 41 FIRs have been registered and 116 people have been arrested till now in Nuh alone. At least 5 people were killed in the violence. Nuh's violence has rocked Gurugram as well. Shops set ablaze, vehicles burned. The mob ransacked shops belonging to a particular community. At least 7 stores were set on fire. Cops conducted peace flag march. Right-wing Hindu group VHP and Bajrang Dal are staging protests against Nuh violence at various places, including Delhi-Haryana border in Badarpur. Security has been beefed up at border amidst protests. They've also planned a protest march from Manesar as situation remains fragile in Mewat. Monu Manesar, car vigilante and lynching accused, who's at the center of this violence, claims he was not present at the yatra and that the violence was stoked by Nuh's Muslim leaders, including Congress's Maman Khan. Amidst the communal flare in Nuh, Haryana Deputy Chief Minister has come out in support of people of the region, blames rally organisers for the chaos in Haryana, says they did not give proper estimation of the crowd to district administration. Well, after Haryana's Nuh, Gurugram's Badshahpur is now on the edge. India Today has accessed the FIR that blames 700-strong mob. They were chanting religious slogans. They carried out illegal weapons. Police appealed them to maintain peace, but they continued the stone pelting. They also fired upon policemen using illegal weapons. 1 policeman was shot in the abdomen and many were injured. They also held hostage 40 pilgrims in Ram Temple. Security has been beefed up. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested and at least 6 people were killed in the Nuh violence. Shops were burned, vehicles set ablaze by mob last night. The mob ransacked shops belonging to a particular community and at least 7 shops were set ablaze. RAF conducted flag march in Badshahpur as violence gripped the region. देखिए अभी तक कुल 41 FIR दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये FIR दर्ज हुई हैं। एक FIR हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है।
और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना, जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू रहे। सर, स्कूल कॉलेज का कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस लेने के ऑर्डर्स करवाएंगे। स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIR रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। Congress and INLD targeting the BJP government in Haryana over the near violence, alleging that the ruling combination has failed on the law and order situation. Listen in to all the political reactions that are trickling in at the moment. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में, और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है, और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया। वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। तो कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, शांति से निकल रहे हुए एक धार्मिक जुलूस पर जिस तरह से हमला होता है, पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन ये केवल नूह में नहीं होता। इस तरह की कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है। आपने देखा होगा करौली में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से सुनियोजित रूप से हमला हुआ। हमले के बाद हमलावरों ने पत्थर फेंके, कई गाड़ियां भर करके पत्थर ऊपर छतों पर रखे हुए थे। उनको कौन संरक्षण दे रहा था? किसके दबाव में पुलिस मौन और चुप थी? हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके
आंखों के सामने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। हरियाणा भी अब मणिपुर की तरह बदल रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर ये वायलेंस हुई? ये जो वायलेंस सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था मेंटेन। आपको पता पिछली फसल में उसमें सिर्फ ये सुविधा थी कि कोई किसान उसकी फसल का नुकसान हो जाए तो वो उस पर क्लेम भरता था, और पिछली फसल का सारा क्लेम वैसे इस वर्ष भी हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए। Haryana continues to remain on the edge, and Manohar Lal Khattar is about to address a press conference to answer a few very critical questions after Gurugram's Badshahpur is also now on the edge. We have also accessed the FIR that is blaming 700-strong mob that were chanting religious slogans, carrying out illegal weapons, and many questions that the government in Haryana needs to answer on the back of this failing law and order situation in the state of Haryana by the BJP-led government. In fact, Home Minister Amit Shah has also spoken to Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, and he is about to speak to the press, answer some very, very critical questions on this. Security has been beefed up. There are lots of prohibitory orders in several different areas across Haryana. In fact, till now, 116 arrests have been made. 6 have been killed in nerve violence alone. In fact, we're getting you more details as to how one police officer was shot in the abdomen. Many were injured. They were also held hostage. 40 pilgrims in Ram Temple were held hostage too. Listen in to Manohar Lal Khattar. किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। चलो कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्वेयर्स उनके माध्यम से कराएंगे, और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज़ जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें, और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन पोर्टल ही दिखा रहे हैं, तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी बीबीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस पर
परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो OTP मंगवाना चाहें वो OTP भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है ईद क्षतिपूर्ति का, वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया, तो कोई भी कारण चुन ले, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब है या व्यावसायिक हानि, तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है, और फिर ये भरना है कि कितने होंगे। बस आगे दिखाने चाहिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पटवा दिखाना था नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं है। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म, ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना DC को ढूंढना, जैसे CM साहब ने कहा जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना, और फिर जैसे सर ने कहा जो कुछ नए आंकड़े दिए, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं, वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला, हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसकी डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40%, जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक, और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान कर चलता हूँ जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं, सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं।
ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें पहले से हमारी एक योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। अर्बन एरियाज की, हाँ ये अर्बन एरियाज़ की थी। ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज़ का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है। उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है, हाँ वो बता दें। वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवार या घर के कच्चा के पक्का वो अपर सीलिंग से एक क्षण में मिलेगा। हाँ उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का हाउस खुला। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है उसमें कुछ मुझे कम लगी। हाँ जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शियली डैमेज हाउस है जहाँ पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के घर के लिए, और झोपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति झोपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे, दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ ये कई साल पुराना है उस पर। हाँ 18 का शायद, कब का है? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिवीजन भारत सरकार ने किया था वो जी। लेकिन एक बात ये है कि जो भारत सरकार के कॉम्पनसेशन नॉर्म्स होते हैं अगर आप फसलों में देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हम देते हैं अपने पैसे से। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इसके भी ऊपर स्टेट बजट से लिया नहीं सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के उससे बाहर जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय हैं एक दो जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िए जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़िए जो उसकी डेथ हुई जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसे पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली का पानी का, बिजली नहीं पानी का, तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद ध्यान में आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा
बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंततोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी। पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें HSV के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है। उसमें ये सब तो जो हमने compensation के नाते से। All right, that was Manohar Lal Khattar. You heard him right there on Haryana being on the edge and addressing a press conference on that front. We're slipping into a very short commercial break. Lots more coming up on the other side. Stay with us. You are watching India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. North of China is witnessing the wrath of the rain gods. Fierce rain and flooding that have pummeled Beijing since the weekend have killed at least 11 people and several are still missing. Major flooding has forced the evacuation of tens of thousands of people. The torrential rains have caused havoc in the city, with rivers overflowing and submerging various areas. इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे? 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर हैं या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे, और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा
ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो ज़रूर इसमें पूछें। एक मेरा निवेदन जैसे जनता से रहता है कि सब लोग शांति कायम करने के लिए वो सहयोग करें, आगे आएं, वैसे मीडिया से भी मैं अपील करूंगा कि हम जो भी विषय बातचीत करें, चाहे प्रिंट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें कैसे हम शांति कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं उन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम ज़रूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके, पहले एक एक करके। हाँ, हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, रुकिए रुकिए, हाँ, एक एक करके। सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रशासन का अंग होता है। ये सामाजिक सुरक्षा शांति बढ़ाने के लिए तो आपने वहाँ पर फोर्स भेज दी, आपने जैसा जान लीजिए बड़ी संख्या में आप फोर्स भेजी गई, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो लोग मारे गए वहाँ से ऐसी भी सूचना आ रही है जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से, क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे उनको बकायदे घेर करके जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। तो एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मुआवजे क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है बाढ़ आ जाता है, एक दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, 3 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा किया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मामन खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूं? एक एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील पहले की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज़्यादा न उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव,
इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में हैं। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक करके आपके जो विधायक हैं सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहाँ विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं सत्यप्रकाश राव ने, कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक ममन खान नहीं है, जरावता। देखिए सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं At the core of this entire unfortunate incident is the social media पे जो मोनू मानेसर ने अपना वीडियो भेजा। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you had said people from outside had also entered Nuh, who are also responsible for this arson, for this rioting. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were looking at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले
कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ इसमें क्या पूरी जानकारी प्रशासन को सरकार को नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐसा कहा गया कि आयोजकों में पूरी मीडिया जुड़ा नहीं किया था, इस वजह से शायद मैनेजमेंट में कुछ क्या किसने कहा कि आयोजकों ने पूरी मीडिया व्यवहार नहीं किया, इस वजह से कोई व्यवस्था में कमी नहीं। ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीम पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं, इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में लास्ट। हाँ उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। चलिए कौन बोल रहे हैं? हाँ तरीके से प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले उस दिन से ही पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। एक मोनू मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त करा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा है? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक एक करके भाई, एक करके। वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा ये जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव करके इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी? हर पहलू पर जांच होगी और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब लास्ट एक ये हाँ, ब्लैक शर्ट। गुरुग्राम में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उनका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी मैं उनसे बात करूंगा। रवि आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखी, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक करेंगे? क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब ना होने देंगे। इनेलो के नेता का छोटा सा ये बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो नेता है वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर तो इस मामले में चर्चा करें? देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ जी,
सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा साहब भी बात कर रहे हैं, अनिल साहब की भी सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या रास्तों पर लगाने की तैयारी है जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर? जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5 गाँव में छापे मारे थे काफी बड़े, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के लोगों ने या समाज ने ये कदम उठाया, पुलिस को भी निशाना बनाया और साइड में थाने को स्पेशल बनाया। तो इसके ऊपर आपने जैसे वहाँ के बहुत बटालियन भी लगा रहे हैं, तो क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए वो एरिया पुन्हाना का एरिया है, 14 गांव में हमने छापे लगाए थे और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। और ये नूह का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। जांच के लिए कोई आपने एसआईटी बनाई है सर? देखिए जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, डीजीपी वहाँ बैठे हैं, एडीजीपी सीआईडी वहाँ बैठे हैं, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो आईजी हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। एसआईटी होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं। इनके बैठने के बाद कोई एसआईटी का वर्क बचता नहीं। एक करके बस अब दो तीन हाँ एक मिनट अरे एक करके सबका मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, चिंता मत करो। सर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी अगर एक्शन लेते तो इस तरीके की हिंसा ना होती, इनपुट था लेकिन पुख्ता नहीं था, इसकी वजह से एक हिंसा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद, देखिए ये अगर का विषय नहीं हुआ करता, घटना नहीं होती तो सब ठीक था, और जो घटना हो गई है तो कितने अगर लगा लो। वो आ गई बात सारी। एक मिनट भाई एक करके ना, ऐसा थोड़ी है। दोनों विधायकों द्वारा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद खान द्वारा जो रोया गया था विधानसभा के अंदर, वो रोए थे। मोनू मानेसर के खिलाफ उनके द्वारा सबूत भी पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर एक तरीके से थ्रेट है, जो जून जिले के अंदर जो है वो लगातार जो टीनेजर्स हैं, मुस्लिम टीनेजर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ड्रग्स के केसेस जो है वो नकली ड्रग्स के केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, और बहुत सी कार्रवाई जो है वो गोरक्षा के कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता हमने बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। चलिए एक सेकंड, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है। मुख्यमंत्री जी 11 साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा और भी उत्तर दे। कृपया इनके पास माइक है और सवाल पूछना चाहते हैं, वो अपना माइक ऑन छोड़ दें, अभी कर लें, बस उसके बाद ना करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं और अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इतना अपनी वो दिखाएं कि खड़े रहें, बोले, तो जब बैठ जाएंगे सारे तो मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे कि हो गया। देखिए अगर कोई, मेरा क्या कहना है, अगर कोई ऐसी कंक्रीट ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में कोई मुझे जनता को आपको बताना है, आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचानी है, तो विषय कई बार हम भी विषय ऐसे पूछते हैं जिसमें से आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में, एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियां करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंत में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं।
पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने कोई भी व्यक्ति हो कोई हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। All right, that is Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar answering questions to the press as far as the violence in Haryana is concerned. There's also a political blame game, as you know, and Haryana Chief Minister saying he's taking stock of the situation. He has given out all the answers to the press right now in this very important press conference that he just addressed. We're bringing you visuals on your screens right now of all that is happening across Haryana. We're slipping into a short commercial break. This remains to be our top focus. Viewers, stay with us. You are watching India Today. In less than 2 months from now, the new iPhone 15 will be on sale across the world. While Business Today TV had reported on Friday about the price of its high-end models crossing the 2 lakh rupee mark for the first time, BTTV has got hold of more details about the much-anticipated Apple handset. It's likely to have the smallest bezel yet and could be rid of the infamous notch. Apart from the all-screen upgrade, the iPhone 15 and 15 Plus will also come packed with major camera improvements, and the traditional Lightning connector will give way to the faster USB-C. Tech Today's Danny De Cruz has more on all the new features expected. Danny, take it away. The new Apple iPhones are coming soon. Most likely, they will be here by September. So a new report has leaked a lot of information about the iPhone 15 series. So let's start with the more affordable iPhone 15 and iPhone 15 Plus models. The biggest change coming to these models is that Apple will finally do away with the notch. Both the iPhone 15 and iPhone 15 Plus will get the dynamic island, which was last seen in last year's Pro models. The cameras are getting a massive upgrade too, along with the performance. And yes, gone are the days of Lightning port. All new iPhones will be getting the USB Type-C for the first time. Now on to the Pro models, in which Apple is replacing the shiny frame with titanium, so your new iPhones will be strong too. The displays will also be better because of thinner bezels, and Apple is giving the camera hardware a substantial boost. The performance alone will make the iPhone 15 Pro models a compelling upgrade. They will become the first smartphones to use a 3nm chipset. All these upgrades make the new iPhone 15 models a good upgrade, but you will also have to shell out more money. Some models may even cross the rupees 2 lakh price point in India. All right, thanks for that, Danny. Firstly, Chetan, I'd like to say we've never said we want to be asset light. The reason in 2014 was not because we wanted to be asset light, because if you remember, our original decision in 2014 was to do the investment ourselves.
we were going to have all this Gujarat investment on our side, on our books. So we had no intention of being asset light. We became asset light because we got an offer from Suzuki, which, when we finalized it, came out so much in our benefit that we said, okay, we'll not have these assets on our books, but we will get a lot of extra benefits by doing this arrangement. So asset light was never our intention. This arrangement was made to get extra benefits more than what any other company in the world gets. And we got those benefits. Right. Also, sir, what happens to the domestic market for Suzuki and Maruti both combined? Will Suzuki take a hit in any way, or will Suzuki's identity in India will be a little, diminished with this announcement, or are you looking at a separate plan for Suzuki? Maruti is a Suzuki subsidiary. The presence of Suzuki in India is entirely through Maruti. Okay, they have their own battery manufacturing plant, but otherwise their presence in India is actually all through Maruti. And anything which is done in the best interests of Maruti is also in the best interests of Suzuki. Both companies have to rise together. We can do things which will be in the benefit of Suzuki, but not in the benefit of Maruti. But that will ultimately hurt Suzuki in the long run. So Suzuki is very conscious of this fact. And this decision is a joint decision taken with the Suzuki management and us to make an arrangement which will be to the mutual benefit of both, but especially for Maruti and Maruti shareholders. Right. Okay. Also, sir, the big question that your shareholders would ask you, what should the shareholders do now? Are they in for some kind of troubles, or is this a happy news for them, sir? We will, after the board meeting discusses, the mode of buying the shares, go to the shareholders, explain to them what I'm talking to you about, the whole rationale of this, and what we think should be the best way of buying the shares from Suzuki. And then, of course, it's the shareholders' decision whether to support that or not, because we need a majority of the minority shareholders to support whatever recommendation we make. We cannot take all these decisions without the approval of the minority shareholders. So sorry. You are watching India Today.
communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on ground. एक्सक्लूसिव विजुअल कि कैसे पत्थरबाजी इस समय यहाँ चल रही है, माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। Facts, questions and first-hand reports. The charred vehicles that lie testimony to the kind of attack. Amount of arsoning that happened is proved from the visual that you right now see. 100% accuracy amidst the blaze. Police officers are combing in the area and that is why the situation is under control. We track the face of every story. इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। This is the kind of situation you see on the ground in Gurugram. India Today, India United. Hello and welcome. This is a special broadcast that we are getting for you from the violence-hit areas of Mewat and subsequently Sona and Gurugram. Now the Bajrang Dal and the VHP has upped its ante over the riots that took place in Nuh. Amidst the violence, the Hindu group is now protesting over the violence which has right now further escalated the tension in the national capital. Right there you can see in your visuals, these are Bajrang Dal Karyakartas, Vishva Hindu Parishad Karyakartas who have blocked the Badarpur Toll Plaza, which is the connecting point between the national capital and Faridabad of Haryana. And right there you have the Bajrang Dal Karyakartas sloganeering, holding Bhagwa flags and sitting on the road, literally blocking the lane which heads towards the national capital. Before this, there was another attempt done by the VHP Bajrang Dal Karyakartas to stop the movement of the traffic coming from the national capital towards Faridabad. Bajrang Dal Karyakartas, the VHP Karyakartas raising slogans and Jai Shri Ram slogans being raised. The toll plaza lanes have been blocked, you can clearly see, and the Haryana police remains mute spectator of the agitation which is unfolding on the toll plaza on the borders of the national capital. With video journalist Raja Kumar, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi. इस वक्त मैं नूह चौराहे पे हूँ तो उसके बाद पुलिस यहाँ से किसी नई हिंसा की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 22 एफआईआर अब तक नूह इलाके में दर्ज हुई हैं और कल हमने देखा था कि इन तमाम इलाकों से जो ये सामने आप सारा, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, तो इन तमाम इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। बाकायदा बस लेकर के पुलिस चल रही थी, साथ में बड़ी संख्या में पुलिस की टीम थी, तमाम आला अधिकारी थे, एडीजी यहाँ पर मौजूद थी और उन एक एक करके जो पहचान जिसकी हो रही थी उसको डिटेन किया जा रहा था। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं या जिसकी पहचान हो रही है उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा यहाँ अभी भी बंद है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की यहाँ पर कई बसें यहाँ पर आई हुई हैं और देखिए सब उतर के अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर लेते हुए, चूंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर उपद्रवी फिर से आकर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और दूसरी तरफ एक बस दूर से जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि हरियाणा पुलिस की है। वो भीतर अंदर की सड़कों के भीतर जा रही है, चूंकि अलग अलग जगहों पर तैनाती बेहद जरूरी है। वो कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी मौजूदगी होना यकीनन मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी वजह से एक तरफ हरियाणा पुलिस की एक बस अंदर की तरफ दाखिल हुई है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के ये तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए
इस वक्त नूह में हमारी मौजूदगी है और अलग अलग रास्तों से होते हुए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पूरी तरफ चारों तरफ सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। अजीब सी खामोशी इस वक्त नूह में खड़े होकर जो हम महसूस कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर चलती हुई नजर आ रही हैं। या तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान हमें दिखाई दे जाते हैं या फिर यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हमें नजर आ जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस पुलिस चौकी को जब परसों शाम को फूंका गया था तो फिर इसके अंदर की तस्वीरें क्या बोलती हैं वो आपको बताना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको देखकर अब अंदाजा लगा पाए कि यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ था। जितने भी सामान थे, अगर आप महेश इधर से अंदर की तरफ आ पाए, जो भी सामान इसके भीतर था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। Bajrang Dal leaders and VHP workers hit the streets of the national capital, calling spade a spade. Security has also been beefed up and neighboring Noida has also been put on high alert. Not just this, the family of victim who was killed in the violence stormed roads of Panipat seeking justice. At least 6 people were killed in the riots that rocked the state of Haryana. जो हमारा लड़का गया था परसों से सेवा में गया था, देश सेवा में, और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है 1 साल से। बहुत अच्छा लड़का था, किसी चीज़ का ऐब नहीं था, बहुत अच्छा था, परिवार में अकेला था। और हमने नया चाहिए, जांच चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त सख्त चाहिए। अभिषेक के ताऊ है, क्या मांग करते हैं अभिषेक के बारे में? इंसाफ चाहिए ना, जैसे मारा गया ऐसे उनको फांसी दो, चाहे मारो। हमने रुपयों की वो नहीं है, अखबार रुपये देने हैं वो लेना है, बस हमारा ये इंसाफ मिलना चाहिए। अभिषेक कब से जुड़ा था? धार्मिक था कुछ, जैसे बजरंगी लगा रहे इसके पीछे? धार्मिक था, साल भर से जुड़ाया था। तो क्या मानते हैं ये जो दंगे हुए, ये जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार तो प्रशासन है। प्रशासन ने जब ये पता लगा वहाँ ऐसा दंगा होगा, प्रशासन ने क्यों नहीं वो करी वहाँ? मेरे पुत्र में 5 साढ़े 5 बज गए जी। मेरे पुत्र ने मुड़ के मेरे नाल कोई गल नहीं करी, ना फोन चुक्या। मेरा पुत्र कला कमाना थी जी, मेरा पुत्र कला कमाना थी जी। सर, हमें जो है मांडीखेड़ा हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है, तो हम यहाँ से गए और जो है वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था जी। तो कहाँ कहाँ चोट लगी थी, कैसे उसकी मौत हुई, किसी ने बताया? उसके सिर पर चोट लगी थी और कुछ लाठी डंडों से जो है ना पैरों में, जांघों में भी जो है कि वार किया था। Monu Manesar, the accused in the alleged cow smugglers killing in Bhiwani this year, is back in news. Allegedly, there was a social media video that went viral where Monu Manesar suggested that he will be attending the rally that was taken out by VHP and Bajrang Dal in Nuh. He, however, didn't attend the rally. Exclusively speaking to India Today, Monu Manesar said the same, that he was not a part in the rally and that the rally was fired upon by AK-47 rifles. He has also blamed the Muslim MLAs of Nuh for the violence, which includes Congress MLA Mamman Khan. Listen in. मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाटमिका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारी गण थे उस यात्रा में, मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग
की गई है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग, और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए, तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा हम उड़ा देंगे 47 से, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। Accused in the killing of 2 alleged cow smugglers and cow vigilante, Monu Manesar has an ongoing feud with Congress MLA from Nuh, Mamman Khan. Mamman Khan had earlier openly threatened Monu Manesar that if he comes to Mewat, he will face the music. He had spoken about this while he was addressing the Haryana Assembly. आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरा जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तो बैठ जा अपना। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े हो? मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े। ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र, मैंने जैसा कहा, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस एमएलए ममन खान has been on record in Haryana Assembly speaking about a possible conflict in Mewat. What we saw the other day was at his instigation. There are several videos of people associated with Maman Khan echoing his statement, his words verbatim, as they mobilized people to attack the Shobha Yatra. 116 people have been arrested, and those behind this violence are being booked. The law will take its course, but one thing is very clear, that there is a strong Congress link. Now, meanwhile, the Congress and the INLD has blamed the BJP and the JJP coalition government in Haryana for the failure of the law and order situation that transpired during the violence that took place day before yesterday in Nuh. Listen in to these reactions. 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं।
अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। सारा जो विषय आया है इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान इसी पोर्टल में एक फिर उसकी असेसमेंट। Big India Today investigation on the mayhem in Mewat. I want to go across live and exclusive to the Home Minister of Haryana, senior Bharatiya Janata Party leader Anil Vij, now joining us on this broadcast. Vij साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त हरियाणा पे क्या चल रहा है। आप राज्य के गृह मंत्री हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक की आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की तहकीकात कहां पे पहुंची है। आपके हिसाब से नूह मेवात के इलाके में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, वहीं से शुरू करते हैं। विज साहब, देखिए, अभी हमने वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 20 कंपनियां हमने केंद्र सरकार से जो मिली थी वो डाली हैं। 30 कंपनियां हमने हरियाणा की वहाँ पर डाली हैं। मेरे सामने सबसे पहले काम है वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करना, शांति बहाल करना, लोगों का सरकार में विश्वास कायम कराना, और वहाँ पर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उस एक एक आदमी को उसके किए की सज़ा दिलाना। उसके लिए पुलिस वहाँ पर लगातार काम कर रही है। लगभग 41 FIR वहाँ पर दर्ज की गई हैं। 116 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 90 आदमी अंडर डिटेंशन हैं। उनमें से भी हम एक एक आदमी की जांच कर रहे हैं। हमने नूह को 8 भागों में बांटा है। 8 हमारे थाने हैं। हर थाने पर हमने एक IPS लगाया है जो अपने अपने क्षेत्र में जो जो साक्ष्य वहाँ पर मिल रहे हैं उनके आधार पर वहाँ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अभी आदेश दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी इस घटना में भूमिका है, इसलिए किसी सीनियर IPS की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के लिए मैंने लिखा है जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई और उसके बाद तक सोशल मीडिया की स्कैनिंग करे, फेसबुक की स्कैनिंग करे, ट्विटर की स्कैनिंग करे, व्हाट्सएप की स्कैनिंग करे, और जहाँ कहीं पर भी कोई उत्तेजक बात किसी के द्वारा भी की गई है उसको जो भी कानून है उसके नियमों के तहत उसको सज़ा दिलाई जाए। विज साहब, आपने देखा होगा इंडिया टुडे पर आज तक पे हम लोगों ने एक बड़ी तहकीकात चलाई मेवात में जो मेहम हुआ उसके ऊपर, जिसमें दिखाया गया हम लोगों ने जो स्थानीय CID के IB के जो अधिकारी हैं, जो SHO हैं, उनसे बातचीत में, उससे तहकीकात में विज साहब हमने दिखाया कि किस तरीके से 8-10 दिन पहले स्थानीय प्रशासन को। विज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? विज साहब, आवाज़ कट रही है जी। आपको आवाज़ आ रही है आपको मेरी कि नहीं? विज साहब, आवाज़ कट रही है। विज साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी ठीक से? कट के आ रही है, कट के। नहीं, चलो एक बार फिर से। He's also the man in charge of law and order. We hope to ask him some questions around. आइए एक बार फिर से मैं आपको अनिल विज के पास लिए चलता हूं, हरियाणा के गृह मंत्री। विज साहब, आपको मेरी आवाज बुलंदी से मिल रही है? नहीं जी, नहीं सुन, नहीं, Okay, आवाज क्लियर नहीं, कट रही।
सकते हैं आप गन पकड़ी हुई है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इस समय माहौल कितना खराब है। ये पुलिस की On the news track last night, we showed how there were these people who took out this rally to a temple in Nuh, brandishing swords. They had guns with them. They were firing in the air. And really the question to be asked to the Home Minister, which I hope to do in a moment from now, is what action was taken after the first set of intelligence inputs came in? Because this was known, according to the local CID, 8 to 10 days in advance. It's not something which was found out at the last moment. You've just heard him say that they've asked for a scan of all social media so that they can determine who were the miscreants who put out those incendiary videos. And that's something that the Home Minister has just announced live to our viewers on India Today, that this is something that they're doing. Let me try once again. Hopefully we'll be third time lucky. विद साहब, क्या आपको बुलंदी से मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? अब हाँ जी आ रही है। अरे बहुत खूब, मजा आया। चलिए विद साहब, आपने देखा होगा हमने इंडिया टुडे पे आज तक पे एक तहकीकात दिखाई जिसमें जो स्थानीय सीआईडी है वो कह रही है कि उन्होंने प्रशासन को, पुलिस के तंत्र को 8-10 दिन पहले बताया था कि इस तरह गौरक्षक जो हैं, जो काऊ विजिलेंटेज हैं, उनकी एक ये यात्रा निकलने वाली है और उसके बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। सवाल आपसे जो देश पूछना चाहता है वो ये कि वहाँ पे होमगार्ड की तैनाती थी, हरियाणा होमगार्ड की तैनाती थी, लेकिन आपकी रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स, जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनकी आपने तैनाती क्यों नहीं की? इतने कम पुलिस वाले क्यों थे जब ये यात्रा वहाँ से निकल रही थी और ये वायलेंस हो रहा था? देखिए ऐसा है, वो ऑडियो वीडियो मैंने भी सुनी है और उसको मैंने भेज दिया है डिपार्टमेंट को उसकी जांच कराने के लिए कि क्या उसने इनपुट दी थी, कहाँ इनपुट दी थी, किसको इनपुट दी थी, वो देखना ज़रूरी है। देखिए ये यात्रा हर साल निकलती है और वहाँ पर जो हो सकता है कि लोकल जो प्रशासन है उसको कोई सूचना दी हो और उसके मुताबिक उन्होंने उसके इंतज़ाम कर दिए हों। जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल की है, जितनी पुलिस पिछले सालों में लगाई जाती थी उतनी ही इस बार भी वहाँ पर लगाई गई है। नहीं, पर फिर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे आर्म्ड पुलिस, मेरे को जो बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि 2 किलोमीटर की दूरी पे आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स थी, उसको तैनात नहीं किया गया। ये जो होम गार्ड्स हैं जिनके पास हथियार भी नहीं होते, वो बेचारे खड़े हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में। आपको मालूम था कि इस तारीख को यात्रा निकलने वाली है, फिर भी तैनाती की थोड़ी कमी थी सर। नहीं देखिए, ये अब प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम होते रहते हैं, सबकी जानकारी हमारे तक नहीं आती है, तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ही अपने जो इनपुट होता है उसके हिसाब से इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि मामला ये इतना बड़ा हो गया तो इमीडिएटली फिर हमें पुलिस भेजनी पड़ी है आजू बाजू के सभी ज़िलों से, गुड़गांव से, झज्जर से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, सारी पुलिस हमने फिर वहाँ पर भेजी जब ये मामला हो गया। पहले तो रूटीन जैसे ज़िले में आम कार्यक्रम होते रहते हैं उसी प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा था। अच्छा विद साहब, ये बताइए कि ये मोनू मानेसर का आपके हिसाब से स्टेटस क्या है? ये बजरंग दल का जो काऊ विजिलेंटे गौ रक्षक दल है उसका इंचार्ज है। राजस्थान में जो लिंचिंग्स हुई उसमें ये अक्यूज्ड है। कहा जाता है कि मानेसर में ये खुला घूमता है। आपके विचार में मोनू मानेसर का इस वक्त का स्टेटस क्या है? नहीं, हमारे विचार में वो एक वांटेड क्रिमिनल है, उसके खिलाफ हरियाणा में भी और राजस्थान में भी केस दर्ज है और उसको दोनों प्रदेशों की पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो आप कमिटेड है, मतलब ऐसा तो नहीं कि चूंकि ये वीएचपी और बजरंग दल का है, वो ओवरऑल आरएसएस के ही एक हिस्सा है, तो आपकी सरकार, आपने कहा वांटेड क्रिमिनल है। देखिए हाँ जी, उसके खिलाफ केस दर्ज है, हमारे प्रदेश में भी दर्ज है, राजस्थान में भी दर्ज है, दोनों प्रदेशों में केस दर्ज है उसके खिलाफ। एक चीज और बताइए, ये साइबर पुलिस थाना जो है इसको टॉर्च किया गया, इस पे आगजनी हुई, तो
इसकी क्या वजह है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि चूंकि आपकी सरकार ने वहां पे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्योंकि नूह मेवात एक तरीके से जामतारा 2.0 के तौर पे उभर रहा है, वहां पे साइबर क्राइम काफ़ी चल रहा है, इस वजह से साइबर पुलिस थाने को टारगेट किया गया। आपकी फिलहाल ये साइबर पुलिस पुलिस स्टेशन की टारगेटिंग को लेकर क्या खबर है? नहीं, इसी एंगल से हम भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जब तक सारे तथ्य सामने ना आ जाएं तब तक कुछ कहना बेहतर नहीं है। ये एंगल हमने भी देखा है कि साइबर थाने को ही क्यों टारगेट किया गया, उसको ही क्यों दीवार तोड़ी गई, उसकी गाड़ियों को क्यों आग लगाई गई, ये हमने भी देखा है। और हम इस एंगल से भी, क्योंकि कुछ समय पहले हमने वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में साइबर का जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा था, और उस एंगल पे हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, पर आपने बनने भी तो दिया। ये जो पूरा नूह मेवात का बेल्ट जामतारा 2.0 बना है, वो भी तो सर आप ही के राज में बना है। आपको इसको रोकना चाहिए था। आपने इस तरीके से इतना साइबर क्राइम वहां पे होने क्यों दिया? अब आप एक्शन ले रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन शुरू में तो ये अड्डा तो बन ही गया साइबर क्राइम का। देखिए, हमें जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने लगभग 5000 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर लगाए, और हमने जो उसमें शामिल थे उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनको जेल में भी डाला है। अच्छा, ये बताएं, ये जो आगजनी हुई नूह में, मेवात में, सोना रोड पे, गुड़गांव में, उसको पूरा देश देख रहा है। खासतौर से आप गुड़गांव को एक मिलेनियम सिटी के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर से आप निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों के वहाँ पे कारखाने हैं, वहाँ पे उनके दफ्तर हैं। इस तरह से जो आगजनी हुई, दफ्तर बंद करने पड़े, उससे तो काफ़ी एक नेगेटिव मैसेज गया। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, जो गुड़गांव को लेकर चिंतित हैं, उनको गृह मंत्री के तौर पे आपका क्या मैसेज है सर? नहीं, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्थानों पर जो सेंसिटिव स्थान है, हमने सफिशिएंट संख्या में फोर्सेस लगाई हैं। हमें 4 कंपनियां केंद्र से और मिल गई हैं, उनको भी हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। मैं सारे प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से वो सिक्योर हैं, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, सारे प्रदेश में शांति है, और हर जगह पर हमने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। ये बताइए, बार बार आपकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई कंस्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। आखिर क्या है वो कंस्पिरेसी जो आपको नजर आ रही है? आपके हिसाब से अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो वो कौन है षड्यंत्रकारी? नहीं, देखिए ऐसा है, ये कोई इंस्टेंट घटी हुई घटना नहीं है, क्योंकि कई जगह पर समानांतर आगजनी हुई है। कई जगह पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं। हमने जब गुड़गांव से पुलिस भेजी वहाँ पर, तो एंट्री पॉइंट पर ही उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, गोलियां चलाई गई। हमारे 2 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए, और बहुत सारे पुलिस कर्मी को भी चोटें आई हैं। तो किसी ना किसी ने तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर इस प्रकार की प्लानिंग की है। किसी न किसी ने तो हथियार इकट्ठे किए हैं, किसी न किसी ने तो पत्थर इकट्ठे किए हैं छतों के ऊपर। कोई ना कोई, किसी न किसी ने तो मास्टरमाइंड किया है, किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है। ये कोई इंस्टेंट होने वाली घटना नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट टू रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन, क्योंकि अभी जांच चल रही है। हम जांच कराएंगे, और प्रदेश के और देश के सामने हम उन तत्वों को बेनकाब करेंगे, तथ्यों के सहित, जिन्होंने ये सारा काम किया है, जिन्होंने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का काम किया है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा की सरकार में ही 2 अलग नज़रिए हैं। जो जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला, वो अलग लाइन ले रहे हैं। आपके स्पीकर, आपके चीफ मिनिस्टर अलग लाइन ले रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो जो प्रबंध था, जो कानून व्यवस्था थी, जिस तरह से इसको होने दिया, उसी से नाराज़ हैं। आपका खुद का घटक दल जो है, वही आपके बंदोबस्त पे सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी जानकारी नहीं दी थी। तो अब मैं ऑर्गेनाइजर्स ने क्या एप्लीकेशन दी थी, क्या उनको इजाज़त दी गई थी, मैं उसका सारा एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ। देखने के बाद ही मैं इस बात के ऊपर बोल पाऊँगा।
आपको अब कॉन्फिडेंस है कि इस तरह की चीज़ फिर से नहीं होगी हरियाणा में? अब कोई टेंशन की बात नहीं है, या होम मिनिस्टर के तौर पे अभी भी आपको लग रहा है कि अगले कुछ दिन काफ़ी टेंस रहने वाले हैं? नहीं, किसी भी हालत में और ये नहीं होने दे जाएगा। और मैं लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, इसमें हम शांति बना के रखेंगे तभी हम तरक्की के पथ पर आगे जा सकते हैं। इसलिए सभी का कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना डाले, किसी पोस्ट को गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको फॉरवर्ड मत करें। आप ये माने कि हमने सब पर नज़र रखी हुई है, और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से है, क्या करता है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। मेरे लिए तो देश है और देश के नागरिक हैं, उनके लिए एक कानून है। मैं सबके खिलाफ आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं प्रदेश में सख्त कार्रवाई करने के लिए। नहीं, ये आप एकदम जरूरी बात बोल रहे हैं कि और आप सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आएगा उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे, वो किसी भी धर्म का हो। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये पोस्ट तो 2-3 दिन पहले से आ रहा था कि ये यात्रा होगी, आओ करेंगे, क्रांति करेंगे, जुड़े। ये सारी बातें तो मोनू मानेसर और वो जो बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी, बाकी लोग तो ये पहले से बोल रहे थे। तो आप लोग पहले क्यों नहीं देख रहे थे सर सोशल मीडिया? मैंने आपको ये पहले ही बताया कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई गतिविधि हो रही थी तो स्थानीय प्रशासन ने उसकी कॉग्निजेंस ली होगी। लेकिन अब मैं पहले तो जो मेरा दायित्व है मैं वो करूँ ना, पहले तो मैं शांति स्थापित करूं, लैंड ऑर्डर ठीक करूं, ये चीज़ें तो मैं जांच करूंगा। ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना जी, बाद में भी ये जांच कर सकते हैं कि किसकी कमी थी, किसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसको दी तो क्या दी, ये तो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम शांति व्यवस्था कायम कर ले, वो मेरा प्राथमिकता है, वो मेरा काम है सबसे पहला, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। I leave it over there. Anil Vij, the Home Minister of Haryana, joining us live on India Today. Thank you very much, sir. Really appreciate your time. The big breaking story at this moment, the Home Minister of Haryana announcing live on India Today that his police force has been entrusted with the Mewat Mayhem tapes. That investigation carried by India Today is now being probed by the Haryana police to try and determine if there was a conspiracy angle, if this information was available in advance, if inadequate action was taken, who is to blame. So all that now part of an official probe that being announced by the Haryana Home Minister live